Now let us discuss what happens when cells are in parallel. When cells are in parallel, then its notation will appear this way. Let us suppose we have two cells connected in parallel. दो सेल्स पैरेलल में दिए गए हैं. जनरली द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स विल बी गिवन टू बी इक्वल. हम जो भी क्वेश्चंस देते हैं उसमें अगर सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनकी ईएमएफ सेम दी हुई होगी. उनके इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. द इंटरनल रेजिस्टेंस मे बी डिफरेंट, but the EMF is generally given to be same. Then if you denote the equivalent circuit of this, अगर आप इसकी equivalent circuit बनाएंगे, then remember that दोनों में से किसी भी एक सेल की EMF ली जाएगी. You take EMF of any two cells. Since both of them are equal, so doesn't matter, you will take E, because दोनों equal हैं, इसीलिए कोई भी एक EMF यहां लिखा हमने. This is the equivalent EMF. And internal resistance will be as you connect these two resistors are in parallel. जैसे अगर दो resistors पैरेलल में कनेक्टेड हों तब जो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां होगी. इफ यू रिमेंबर द पैरेलल एडिशन ऑफ टू रेजिस्टर्स, देन हमने उसे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से इंडिकेट किया था. सो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस two cells in parallel will be something like this. EMF of any two cells will be taken, that is E. अगर कई cells होंगी तब भी equivalent EMF E होगा, but internal resistance will be the parallel addition of the individual internal resistances. जो equivalent internal resistance होगा वो इन दोनों की parallel grouping होगी. Maybe the difficulty level of the question will not be beyond this, but still एक advanced grouping parallel circuit की अगर हम देखें, just for the sake of knowledge, that EMF also are different. हो सकता है आपके माइंड में ये बात हो कि अगर EMF भी डिफरेंट है देन व्हाट. अगर EMF भी डिफरेंट है तो हमने उनको E1 और E2 से इंडिकेट किया है. दी EMFs are E1 and E2, they are different and internal resistances are also different. Then in that case, जो उनका equivalent EMF होगा उसका फॉर्मूला E1 by R1 plus E2 by R2 upon 1 by R1 plus 1 by R2 के इक्वल होगा. You see that the equivalent EMF will be an expression like this. You understand? And internal resistance, as we have seen earlier, that is R1 R2 upon R1 plus R2. If you feel like, you can check for E1 इक्वल टू E2. आप E1 इक्वल टू E2 के लिए चेक कर सकते हैं
कि ये वैल्यू पूरी EMF E के इक्वल ही आ जाएगी. You understand? Whatever we have written here, now you can understand that is just the special case of that advanced grouping. But remember that for all practical purposes, you will be requiring only those circuits in which EMF will be just equal. इनका इक्विवेलेंट सर्किट का जनरल फॉर्मूला वहां पे है और उसी का स्पेशल केस हम ऐसे यूज करेंगे. यू अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस मिक्स अप सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग्स. Now let us look at the mixed grouping of cells. Mixed grouping of cells. Mixed grouping means the series as well as parallel combinations of cells will be given to you. मिक्स्ड ग्रुपिंग में कई सेल्स सीरीज में होंगी और उनके जो पैरेलल में कई रोज भी हो सकती हैं. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम जितने भी सेल्स लेंगे उन सबको आइडेंटिकल रखेंगे. इमेजिन दैट यू हैव वन रो इन विच you have m cells, m number of cells, maybe 5, 10, सारे cells equivalent हैं. For the sake of simplicity, I am denoting all the cells have EMF E and internal resistance R. सारे cells identical हैं. Now you can see this is a series combination of the cells and इस तरह के कई rows हैं. Maybe let us suppose there are total number of n rows of such cells. Total n rows of such cells are there, and finally the entire grouping of the cells has been connected to some external resistance capital R. You understand the situation? यहां पे कई सेल्स सीरीज में, there are m cells in series and इसके कई रोज हैं, there are total n rows, let us suppose, वो कनेक्टेड हैं. So here you can see series and parallel combinations दोनों हैं and the entire group of cells has been connected to an external resistance capital R. इनको हमने एक external resistance capital R से कनेक्ट कर दिया है. You can ask what is the current flowing into the circuit? सर्किट में क्या करंट फ्लो कर रहा है, इसको कैलकुलेट हम करने वाले हैं. Now you see, if I try to make the equivalent of this grouping, then you can say that all the cells in series, let us suppose I indicate by a single cell. जितने भी सेल्स सीरीज में हैं आप अज्यूम करिए कि उनका हम एक इक्विवेलेंट लिखते हैं. अगर m सेल्स सीरीज में हैं तो उनकी EMF सीधा ऐड हो जाएंगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी m into E, isn't it? If all these identical cells are in series, combining, helping each other with the same polarity, then the equivalent EMF will be m times E and the internal resistance will also be m times R, isn't it? Because internal resistance सीधी add हो जाती हैं, internal resistance have simply be added
और ऐसे ऐसे n रोज आपके पास हैं. You understand? This is the first step you did. All the cells of one row, they have been added together, and then n rows like this have been made, and then you are now connecting it to external resistance capital R, and then you are expected to find out the current of this. You understand? ये हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ गया. आपने पहले जितने भी सीरीज वाली सेल्स हैं उनको ओवरकम किया. नाउ ट्राई टू ओवरकम दी सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल. अब आप यहां देख सकते हैं कि n सेल्स हैं, सारे आइडेंटिकल हैं, एंड एवरी वन हैज ईएमएफ m इंटू ई, एंड एवरी वन हैज इंटरनल रेजिस्टेंस m इंटू आर. नाउ पैरेलल ग्रुपिंग की रूल ये कहती है दैट यू टेक वन ऑफ देम. Isn't it? In parallel grouping, we had said that the equivalent EMF will be the EMF of anyone. So you take EMF of anyone, that is M times E. And what about the internal resistance? तो internal resistance में हम उनका equivalent लेते हैं. There are n internal resistances, each of value M into R. अगर हमारे पास m इंटू आर वैल्यू की n सेल्स पैरेलल में हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस n से डिवाइड करके लिखेंगे. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी एम आर अपॉन n. यू अंडरस्टैंड? बिकॉज दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन दिस लॉजिक दैट इन केस n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी r बाई n. वही चीज हमने यहां यूज किया है कि अगर एम आर वैल्यू के n सेल्स पैरेलल में हैं तो उनका इक्विवेलेंट एम आर अपॉन n हो गया. एंड नाउ इट इज कनेक्टेड टू द गिवन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. यू सी दैट? नाउ दिस सर्किट इज सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल लूप क्वेश्चन. आप देख सकते हैं कि वो पूरा सर्किट हमारा एक सिंगल लूप के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है. Now it is very easy to calculate what is the current here. Current में आप लिखते हैं कि what is the supply EMF. You can clearly see यहाँ पे एक ही EMF है जिसकी वैल्यू है m into E. So here we have written m into E. This is EMF. Current is EMF upon total resistance. Now what is the total resistance of the circuit? Again we will put the argument that सेम करंट इज फ्लोइंग इन कैपिटल R एंड इन दिस MR बाई N. दोनों रजिस्टर में चूंकि सेम करंट है, इसीलिए दोनों रजिस्टर्स सीरीज में ट्रीट होंगी. उनका इक्विवेलेंट सिंपली एक एडिशन होगा. देयर इक्विवेलेंट विल बी जस्ट R प्लस MR बाय N. उनका इक्विवेलेंट इस तरीके से लिखा जाएगा. इज इट क्लियर? ये जो मिक्स्ड ग्रुपिंग हमने यहां दिखाई है, दिस इज यू कैन से नेचुरली एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल. दिस इज अ नेचुरली एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल इन ईल फिश, इलेक्ट्रिक eel. Electric eel fish has this kind of configurations inside their body. It is God gifted to them that inside their body there are certain biological cells which work as electric cells as well. They are called electroplaques. Electroplaques बोलते हैं उनको. उनके कई रोज होती हैं सेल्स की, and combined they throw electric current in any external object. Let us suppose you have come close to eel fish swimming, तो ये ह्यूमन बीइंग का रेजिस्टेंस होगा और ये पूरी चीज ईल फिश होगी. उनसे करंट आपकी बॉडी में जाता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, यू गेट इलेक्ट्रिक शॉक. लेकिन हम क्वेश्चन पूछते हैं कि इन केस दिस सेम करंट इज फ्लोइंग इनटू देम, देन व्हाई इलेक्ट्रिक शॉक इज नॉट गिवन टू इलेक्ट्रिक ईल फिश. अगर ह्यूमन बीइंग को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो फिश को क्यों नहीं लगता? बिकॉज यू सी
the current I is coming to you in concentrated form, total I is coming to you, but inside their body, ये अगर fish की पूरी body है, inside their body this current is divided into n parts because there are n rows. You see that उनकी body के different areas में current का magnitude कम हो जाता है, current की magnitude I by n हो जाती है. That means उनकी body में current की intensity distributed है, but inside our body वही सारे currents concentrated form में आती हैं. That is why we get the electric shock and they do not get it. You understand? So this was the beautiful God gifted example of electric eelfish in which mixed grouping of cells is present. And आपको इसके questions भी पूछे जाते हैं in which simply you have to use this formula that the current will be ME upon R plus MR by N. यहाँ पे M क्या था? M थे उतने cells जो कि एक row में थे. And what was N? N was the total number of rows which were present in the mixed grouping of cells. You understand? Now, highlighting these series and parallel grouping, let us highlight certain numerical examples based on these concepts. Let us take a numerical example. Highlighting the concepts of cells in series parallel. You have been given two cells like this. It is connected to an ideal voltmeter this way, and another cell is also connected this way. Assume that the resistance here is 3 ohm. This is 2 volt cell. This is 6 volt cell, and let us suppose the resistance, internal resistance of this cell is 1 ohm. You understand the question? There are two cells, 6 volt, 1 ohm. This is EMF 2 volt and internal resistance 3 ohm, and connected to the ideal voltmeter. You are supposed to find the reading of ideal voltmeter. Mind you, in the question it is given that the voltmeter is ideal. Ideal voltmeter means the resistance of voltmeter will be infinity. Ideal voltmeter का मतलब है कि उसकी resistance infinity होगी, and for that matter no current will be flowing into that. Question clear है सबको? Question says आपको एक सेल 6 वोल्ट और 1 ओम का दिया गया है, इसके साथ एक वोल्टमीटर इस तरीके से कनेक्टेड है, एंड इसी के साथ एक 2 वोल्ट और 3 ओम का सेल भी कनेक्टेड है, एंड आपको ये फाइंड करनी है कि जो आइडियल वोल्टमीटर कनेक्टेड है उसमें क्या रीडिंग आएगी. नाउ रिमेंबर दैट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हेन दे आर डिमांडिंग दैट व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर, दैट मीन्स यू आर सपोज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स. जो क्वेश्चन में अगर हम आइडियल वोल्टमीटर देते हैं, इसका मतलब हुआ कि जिन 2 पॉइंट्स पे वो वोल्टमीटर कनेक्टेड है उन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना होता है. सो आई विल सजेस्ट दैट व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गिवन टू यू, देन मेक अ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस इन विच यू विल नॉट शो दी वोल्टमीटर. आप इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जिसमें वोल्टमीटर को नहीं दिखाएंगे बिकॉज उसके अक्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, एंड बाकी सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनको आप शो करेंगे. यू शो दी रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स एक्सेप्ट दैट वोल्टमीटर. सो माय इक्विवेलेंट सर्किट विल लुक लाइक दिस, दैट इट हैज 6 वोल्ट, 1 ohm, this is 2 volt, 3 ohm,
जिन दो पॉइंट्स पे आपने वोल्टमीटर को कनेक्ट कर रखा था, उन दो पॉइंट्स को हमने A एंड B से इंडिकेट कर दिया है. द पॉइंट्स वेयर वोल्टमीटर वॉज कनेक्टेड, I have indicated that by A and B, and now the question is basically demanding that what is the potential difference between points A and B. मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में आपको सिंपली दो पॉइंट्स A and B की पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है. यू अंडरस्टैंड? जो क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में दिया गया था उसको हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया है. नाउ दिस इज द काइंड ऑफ सर्किट इन विच ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इज देयर. आप देख सकते हैं इसमें सेल्स की ग्रुपिंग हुई हुई है. एंड जो अर्लियर लेक्चर्स में हमने किरचॉफ्स रूल को यूज करके दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा था, दैट पर्टिकुलर नॉलेज विल बी यूटिलाइज्ड हियर. नाउ अ डिफिकल्टी कम्स टू यू वेदर दीज सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल. Maybe in one look they will be appearing to you connected in parallel. आपको एक डिफिकल्टी ये आती है जज करने में कि ये सेल सीरीज में लगी हुई हैं या पैरेलल में. एक नजर में ये हमें पैरेलल में कनेक्टेड लग रही हैं, बट माइंड यू दे आर नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज दिस इज जस्ट अ सिंगल लूप इन विच करंट विल बी फ्लोइंग. ये एक सिंगल लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? You can see here 6 volt is dominant, so this will have the tendency to flow the current in clockwise direction. यहां पे 6 volt dominant है, so ये current को clockwise direction में flow कराने की tendency रखेगा. But this 2 volt, this is not all that dominant. However, it will try to flow the current in opposite direction. You see that? Here, the meaning is that these two cells are connected in series, but with opposite polarity. यू अंडरस्टैंड? यहां पे आप ऐसा ना समझिए कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, रादर दीज सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज हुआ है बिकॉज सेम करंट एक सिंगल लूप में इनमें सर्कुलेट हो रही है. एंड ओनली केयर यू हैव टू टेक इज दैट ये दोनों सेल्स ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं. बिकॉज इसकी करंट अगर क्लॉकवाइज जाना चाहती है तो इस 2 वोल्ट की करंट एंटी क्लॉकवाइज आना चाहती है, और दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे को अपोज कर रही है. यू अंडरस्टैंड? सो अगर हम आपसे डिमांड करें कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट, तो लेट अस सपोज यू हैव शोन द करंट लाइक दिस. हमने करंट को ऐसे दिखाया. सेम करंट I विल बी कमिंग हियर दिस वे, इजंट इट? करंट यहां पे I आएगी, वही करंट I इस 1 ओम में एंटर करेगी एंड लूप में करंट कंप्लीट होगा. नाउ इफ आई डिमांड व्हाट इज द करंट, then you will say this is equivalent EMF upon total resistance, isn't it? आप ये कहेंगे कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट EMF. नाउ इक्विवेलेंट EMF क्या है? अभी आपने कहा था कि दोनों सेल्स ऑपोजिट पोलैरिटी में हैं, दोनों सेल्स एक दूसरे की वैल्यू को अपोज कर रहे हैं. सो नेट EMF यू विल बी राइटिंग 6 minus 2 volt. इज इट क्लियर? 6 minus 2 वोल्ट कैसे हुआ? बिकॉज दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी में है, तो इसलिए 6 minus 2. बट व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस? यू ऑलरेडी नो रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी तो होती ही नहीं है. रेजिस्टेंस दोनों सिंपली ऐड होंगी बिकॉज सेम करंट इज फ्लोइंग इन बोथ ऑफ देम. दे आर इन अ सिंगल लूप, दे आर इन सीरीज. सो दिस इज 3 ohm plus 1 ohm. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज 3 plus 1 ohm. And now this current is simply 1 ampere. Is it clear? The current which is now flowing into this circuit is simply 1 ampere. Now our next step is to find out the potential difference between these 2 points A and B. For that, the old method of writing plus minus sign will be used. For example, current अगर यहां ऐसे flow कर रहा है तो this will be plus minus sign and here it will be minus plus sign. If you feel like you can use this part as well. अगर आप चाहें तो इधर की बजाय इसमें भी इस तरह से यूज कर सकते हैं. But only idea is that I have to reach from B to A.
वेदर यू टेक दिस पाथ और दिस पाथ, हमें सिर्फ ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. सो आई कैन यूज एनी सर्किट, चाहे आप ये सर्किट यूज करें चाहे वो सर्किट यूज करें. लेट अस सपोज हमने यहां पे ये सर्किट यूज किया है. देन टेल मी हाउ विल यू राइट द इक्वेशन. द मेथड ऑफ राइटिंग इक्वेशन वाज दैट यू स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट से बी. आप बी से स्टार्ट करिए. अगर आप बी पे हैं तो आपकी पोटेंशियल क्या होगी, वीबी, इजंट इट. आफ्टर दैट यू विल बी जंपिंग अक्रॉस दिस रजिस्टर. जब आप इस रजिस्टर के क्रॉस जंप करेंगे तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव पॉइंट पे आ रहे हैं. यू आर मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल थ्रू लो पोटेंशियल. तो वैसी सिचुएशन में पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, इजंट इट. हायर से लोअर कितने का ड्रॉप होगा, ड्रॉप विल बी ऑफ आई इंटू आर. आई इंटू आर का ड्रॉप मतलब ये लिखा मैंने आई इंटू आर. आर कितना दिया गया है, आर दिया गया है आपको 1 ohm. द वैल्यू ऑफ आर इज 1 ohm. वैल्यू ऑफ आई विल ऑल्सो बी सब्स्टिट्यूट फ्रॉम देयर. देखते हैं अभी. एंड आफ्टर दैट यू हैव रीच्ड हियर, इजंट इट. आप बी पॉइंट से यहां पहुंच गए. नाउ जंप अक्रॉस दिस. अगर आप इसके क्रॉस जंप करेंगे तो यू आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल. आप लो से हाई पोटेंशियल पे जंप कर रहे हैं. देन व्हाट विल हैपन, आप पोटेंशियल गेन करेंगे. यू विल बी गेनिंग पोटेंशियल बाय हाउ मच, बाय 6 वोल्ट, बिकॉज दैट इज गिवन. सो यहां पे आप लिखेंगे +6 एंड आप कहां पहुंच गए. नाउ यू हैव रीच्ड पॉइंट ए. यू आर स्टैंडिंग ऑन पॉइंट ए. सो दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ ए. इज दिस इक्वेशन क्लियर. आप बी से स्टार्ट हुए, पहले आपने यहां जंप किया तो पोटेंशियल का लॉस हुआ. देन आपने यहां जंप किया तो फिर पोटेंशियल का गेन हुआ. एंड देन यू हैव रीच्ड पॉइंट ए. अगर आप इसमें I इज इक्वल टू 1 एम्पियर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो दिस इज वी बी माइनस 1 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू वी ए. यू सी दैट. एंड फॉर दैट मैटर जो ए और बी का डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी, दैट कम्स आउट टू बी 5 वोल्ट. यू सी दिस VAB, which is being denoted as VA minus VB. This is 5 volt. And essentially यही जो VAB है वो उस वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, क्योंकि वोल्ट मीटर essentially क्या कर रहा है, वो 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो मेजर कर रहा है. So here VAB 5 volt which you have calculated, this is essentially the reading of आइडियल वोल्ट मीटर. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर विल बी 5 वोल्ट. इफ यू फील लाइक यू कैन चेक फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, जस्ट एज एन एक्सरसाइज. आप खुद से ये काम चेक कर सकते हैं कि अगर आप इस पाथ से आएंगे तब भी आपका आंसर वही होगा. यू अंडरस्टैंड. यू कैन डू दैट as an exercise. Now let us take another example to highlight the same kind of concepts.